Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our class. Today we have to learn a lecture from grade 9 and it's our unit 5, and today our competency is of oral communication. So let's find out what our SLO of today. So today we have to look at a student learning outcome of oral communication, and what is that? Use rhetorical questions for a range of audiences. So in this SLO, we will focus on the rhetorical questions, and subtly we will look at how much type of audiences with which we can use the rhetorical questions. So let's go further. So I hope you guys have any idea about the rhetorical questions, because here is our vertical linkage. In the previous classes, particularly in the grade 8, you guys have an idea about the rhetorical questions. So let's find out what our today's topic is. So what is our rhetoric? So students, anyone of you have any idea about the rhetorics or rhetorical question? Is there any who can answer? Who want to give an answer? You all have to on your camera, and if there's anyone who know about the rhetorical questions or have any idea about the rhetorical questions, he can give the answer. तो इसका मतलब है कि किसी को भी rhetorical questions के हवाले से आइडिया नहीं है. So let's find out what is our rhetorical questions. So firstly, we briefly look at the history of rhetorical questions. Actually, the art of rhetoric starts from the Greek times, from the times of Aristotle and Plato, from the times of Empedocles. At that time, there were many people who know the art of inquiry, who know how to question in different settings, how to question within a debate, how to question within a philosophical conversation. So within a philosophical conversation, or while delivering a speech, or within we can say that a debate, rhetorical questions are very useful in that time. So rhetorics is actually, this starts from the Greek era, and rhetorical questions are actually originated from the word rhetoric, which means the art of speaking, the way of speaking, the art of questioning. But today we will look at the core concept, and it's a brief idea, brief history of that concept. So firstly, we have to do a brainstorming activity. Let someone ask from you, what's in a name? So it's a very common question in Urdu as well. नाम में क्या रखा है? तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि नाम में क्या रखा है, तो क्या आप उसको कोई जवाब देंगे? नहीं. इट्स वेरी ऑब्वियस दैट कि आपको किसी के नाम को नहीं देखना. You don't have to bother someone age or someone names. You have to bother someone works. काम असल चीज है. तो इस तरह का सवाल, व्हाट्स इन अ नेम, क्या लगता है, क्या इंस्टिगेट करता है आपको? क्या इस सवाल में जो सवाल पूछने वाला है, क्या वो आपसे जवाब मांग रहा है? नहीं, वो जवाब नहीं मांग रहा. वो एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहा है, वो आपको प्रोवोक कर रहा है, आपके तखय्युल को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहा है. ही इज एक्चुअली प्रोवोकिंग यू टू थिंक अबाउट दैट. Each and everything is concerned with the work. If the work is done, then all things are done. And if the work is not done, then whatever your name is, it's nothing have any significance. So this is a rhetorical question. So such type of questions which did not demand any answer, instead they are actually supposed to ask for the sake of provoking someone's ideas, or provoking someone's thoughts, are actually considered as the rhetorical ideas. So here is a question, is the sky blue? So when we talk about is the sky blue, it's a very obvious thing. The sky is blue. He is not bothering the question, he is actually making some argument. He is talking something different. So अगर आपसे कोई पूछता है कि आसमान नीला है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि नीला है. वो आपसे जवाब नहीं चाह रहा. इसका मतलब है कि वो कोई और बात करना चाह रहा है. यानी अगर कोई ये पूछता है कि हम सब इंसान हैं, आर वी ह्यूमन बीइंग्स, कैन वी स्पीक, कैन वी लिसन, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, कोई उसका जवाब नहीं चाह रहा होता. लेट्स सपोज
आपका टीचर है वो क्लास में आपसे आके क्या पूछता है कि आप चुप बैठ सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या वो जवाब चाह रहा है? नहीं। अगर आप जवाब देंगे तो वो क्या कंसीडर होगा? दैट्स कंसीडर अ एक्ट ऑफ बैड मैनर्स, दैट विल बी कंसीडर्ड अ बदतमीजी। तो आपको बदतमीजी नहीं करनी। यानी इस तरह के क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को हम रेटरिकल क्वेश्चंस बोलते हैं, वो क्वेश्चंस जवाब मांगने के लिए नहीं होते। और हमने इस सेकंड क्वेश्चन से ये सीखा कि बाद औकात अगर आप जवाब देना चाहें तो जवाब देना एक बदतमीजी कंसीडर हो सकता है। यानी अगर टीचर आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप चुप बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब है बी क्वाइट, यू डोंट हैव टू स्पीक। आपको बात नहीं करनी, आपको खामोश बैठना है। तो इसलिए जो रेटरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनका मकसद ना जवाब हासिल करना होता है और बाद का जवाब देना एक बैड मैनर कंसीडर होता है। सो दिस इज हाउ रेटरिकल क्वेश्चंस वर्क्स आउट। कांट यू डू एनीथिंग राइट? नाउ हियर इज अनदर एग्जांपल। So if someone said that, क्या आप कुछ ठीक नहीं कर सकते? Can't you do something right? What's this means? It means that कि आपने जो काम किया वो ठीक नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। It means that what you have done is not appropriate or not done in a proper manner, and you have to work on your thing. You have to work on your, let's suppose on your task, on your goals. सो इस सवाल का क्या मतलब है? इस सवाल का मकसद, जो सवाल करने वाला है, जो स्पीकर है, वो इंस्टिगेट कर रहा है। किसको इंस्टिगेट कर रहा है? उस शख्स को इंस्टिगेट कर रहा है जिससे सवाल पूछा जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि रेटरिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ये सीखा कि रेटरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, सबसे पहले उनका आंसर नहीं चाहिए होता। दूसरे नंबर पे उनका मकसद आपके आइडियाज को इंस्टिगेट करना या आपके थॉट्स को इंस्टिगेट करना होता है। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमने देखा कि बाद औक़ात उनका आंसर देना क्या करता है? एक बैड मैनर कंसीडर करता है, एक बैड इंप्रेशन कंसीडर होता है। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कैन रेज योर हैंड टू आस्क द क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? Okay, so we have to go further with the class. So here is the origin. So I have tell you about the origin of the word rhetorical questions. So actually the rhetorical question is a figure of speech. It used in poetry, in prose, in dramas and in normal day speeches as well. What is the main purpose of figure of speech? The main purpose of using figures of speech within the language to intensify it. We intensify the language in terms of meaning through using the figures of speech. जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी चीज को सीधा सीधा कह सकते थे कि कोई शख्स बहुत बहादुर है, लेकिन अगर आप क्या कहें, he is as brave as a lion, he is brave like a lion, तो आपने क्या किया? मीनिंग के एतबार से किसी टेक्स्ट को रिच बनाने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज किया। तो फिगर ऑफ स्पीचेस का जो बुनियादी मकसद है वो क्या होता है? टेक्स्ट को इंटेंसिफाई करना, इफेक्ट को इंक्रीज करना, असर को बढ़ाना। तो रेटरिकल क्वेश्चंस भी क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि आप कोई आर्ग्यूमेंट जो है उसको डेवलप कर सकें, या आप क्या कर सकें, आप अपनी बात के अंदाज में वजन पैदा कर सकें, अपनी बात को एक बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकें, एक इनोवेटिव वे में कम्युनिकेट कर सकें। तो अगर आप ग्रीक टाइम पे जाएं तो वहां पे ज्यादातर क्या होते थे? फिलोसफर्स थे। अब फिलोसफर जो होता है वो क्या करता है? वो लैंग्वेज से खेलता है। जो फिलोसफर्स होते हैं वो अक्सर लैंग्वेजेस के साथ खेलते हैं, वो लफ्जों के दाव पेच लगाते हैं। तो फिलॉसफी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्वेश्चंस हैं, बिग क्वेश्चंस। तो इसलिए वो लोग जो आर्ट ऑफ इंक्वायरी थी, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग थी, उसके बड़े माहिर थे और उन्होंने कई ऐसे सवाल बना रखे थे जिन सवालों की मदद से वो कोई आर्ग्यूमेंट डेवलप करते थे या वो कोई किसी बात का आगाज करते थे। जैसे आज भी अगर आप किसी आलमे दीन को सुने, किसी फलसफी को सुने, किसी डिबेटर को, किसी तज्जियाकार को सुने, तो वो क्या करता है? वो किसी सवाल की मदद से अपने एनालिसिस का आगाज करता है या किसी सवाल के जरिए अपने आर्ग्यूमेंट को डेवलप करता है।
तो इस तरह से जो रेट्रिक्स हैं इनका आगाज बुनियादी तौर पे फिलोसफर्स ने किया था, लेकिन बाद में डेवलप होते होते ये लिटरेचर और आम लाइफ का भी हिस्सा बन गया। तो रेट्रिक्स इज एक्चुअली अ स्पेशल काइंड ऑफ टॉकिंग, अ स्पेशल वे ऑफ टॉकिंग इन विच you instigate your thought, you develop your argument, you start your analysis with the help of a question which is not asking to want any answer. Instead, you are going to make an argument on the basis of that question. So here it's actually the origin of rhetorical question. Now we have to find out the definition of rhetorical questions. A rhetorical question is a device and a figure of speech used to persuade or subtly influence the audience. Let's suppose when you are listening to a motivational speaker or a religious leader, they use a very subtle statement. क्या ख्याल है या आपको कैसे लगा? Don't you think? तो इस तरह के सवालों का बुनियादी मकसद क्या है? जवाब लेना नहीं है। When someone is talking about a good thing, let's झूठ बोलना एक बुरी बात है या अमलों का दारोमदार नीयतों पर है और वो क्या कहता है, क्या ख्याल है आपका? तो वो दरअसल क्या कर रहा है, आपके थॉट्स को सबटली बल्कि एक इंतहाई लाइट मैनर में इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपको वो थोड़ा सा कुशन कर रहा है कि आपके जहन से खुद वही बात निकले जो बात वो कर रहा है, आप उसकी बात से एग्री करें। तो रेटरिकल क्वेश्चंस का बुनियादी मकसद क्या है? यानी आपका पहला पर्पस है किसी को परसुएट करना, किसी बात पे कायल कर लेना, और दूसरा मकसद क्या है कि उसके थॉट्स को सबटली इन्फ्लुएंस करना, थोड़ा सा उसके ऊपर असरअंदाज होना कि भाई देखो जो बात मैं कह रहा हूं ये बात ऐसे ही होती है। जैसे लेट्स सपोज if I am going to say that 2 plus 2 is equal to 4, what about that? What's your stance? So when I said that, what's your stance? When I'm asking what's your stance, it means that it's too much obvious. I don't want any answer. The thing is obvious. So this is how rhetorical questions are used. They are actually used to subtly influence or persuade the audience. And most of the time, the political speakers, the religious speakers, the media persons use such type of questions to influence their audience, to persuade their audience. Who is with me? So it's an obvious thing that all the peoples who are present at that time are with you when some political leader asks such type of questions. It's a question asked not for the answer, so it's a thing to consider. Rhetorical questions are not asked for the sake of the answers, but for the effect. Rhetorical questions are asked to create a particular effect within the conversation, within the analysis. So this is the point. रेट्रिकल क्वेश्चंस को जवाब पाने के लिए नहीं पूछा जाता, बल्कि अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए पूछा जाता है। यानी अगर आप किसी को यह कहें कि आपने यह काम गलत किया, तो एक अंदाज ये है। दूसरा अंदाज क्या है, आप किसी को यूं कहें कि क्या आपको नहीं लगता कि इस काम में कुछ गलती हुई? तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू इन्फ्लुएंस समवन, इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू परसुएड समवन टू योर पॉइंट। आपको लगा कि वो काम गलत हुआ है, तो बजाय इसके कि आप उसको सीधा सीधा कह देते, आपने रेटरिकल क्वेश्चन को यूज किया और रेटरिकल क्वेश्चन को यूज करके उस बात को कहने के असर को बढ़ा दिया, उसके इफेक्ट को बढ़ा दिया, उसकी हार्मनी को, उसकी मेलोडीनेस को इंक्रीज कर दिया। सो ऑफ्टन टाइम्स a rhetorical question is used to emphasize a point or just to get the audience thinking. तो अक्सर औकात जो rhetorical question है वो किस लिए यूज होता है? ऑडियंस की सोच को अपने साथ मिलाने के लिए, या जो लिसनर है उसको किसी चीज के बारे में इंस्टिगेट करने के लिए, उसके जहन में कुछ पैदा करने के लिए, उसके ऊपर एक खास तरह का इफेक्ट डालने के लिए। सो दिस इज rhetorical questions. If there is any confusion regarding the rhetorical question, you can ask. Yes. If there are any question, you can raise your hand. Yes, students. Okay, so let's go further. Now we just have to look at some more explanation of rhetorical question, and also we have to look at some examples like a rhetorical question. The first thing about rhetorical question, जो पहली चीज आपको याद रखनी है कि rhetorical question जवाब
तलब नहीं होते। बाद का जवाब देना रेटरिकल क्वेश्चन का क्या कंसीडर होता है? बैड मैनर कंसीडर होता है, बदतमीजी शुमार होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर टीचर आपको ये कहता है कि क्या आप खामोशी से बैठ सकते हैं, या क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो या क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो किस लिए होते हैं? वो जवाब के लिए नहीं होते, बल्कि आपको किसी एक्शन पे मोटिवेट करने पे, किसी एक्शन पे प्रोवोक करने पे, इंस्टिगेट करने के लिए होते हैं। तो ये मकसद है, यानी इनका मकसद जवाब नहीं है बल्कि कुछ और है। जैसे मिसाल के तौर पे, लेट्स सपोज हियर इज एन एग्जांपल, डोंट यू हेट इट व्हेन पीपल आंसर योर रेटरिकल क्वेश्चन। तो ये कॉमिक स्ट्रिप से ली गई एग्जांपल है कि एक करेक्टर है ये वाला, वो दूसरे से पूछता है कि क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता जब तुम्हारे कोई रेटरिकल क्वेश्चन का जवाब देता है? तो उसका आगे से जो फेस है वो हमें बता रहा है कि उसको बुरा लगता है। और ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ रेटरिकल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ रेटरिकल क्वेश्चन। अगर आप इसका जवाब देंगे तो वो खुद ऑकवर्ड फील कर रहा है कि मैं इसका जवाब दूं या ना दूं। अगर मैं जवाब देता हूं, मैं कहता हूं कि हाँ मुझे बुरा लगता है, इट्स ऑल्सो सीम्स ऑकवर्ड। और अगर वो कहे कि नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, तो वो झूठ होगा। तो इसलिए रेटरिकल क्वेश्चंस का अक्सर औकात जवाब ना देना ही मुनासिब होता है। इज दैट क्लियर? जिस तरह दोस्तों के अंदर फॉर द सेक ऑफ फन जो है वो यूज होते हैं रेटरिकल क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि रेटरिकल क्वेश्चंस डिफरेंट तरह की ऑडियंसेस के साथ परफॉर्म हो सकते हैं। यानी एक रिलीजियस ऑडियंस है, एक पॉलिटिकल ऑडियंस है, कोई एक हम कह सकते हैं कि एकेडमिक ऑडियंस है, उसके साथ भी रेटरिकल क्वेश्चन होंगे। और रेटरिकल क्वेश्चंस पर्सनल लेवल पे भी होते हैं। यानी लेट्स सपोज एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि जी अगर आपने मुझे ये नहीं बताना तो क्या मैं मर जाऊं? और लेट्स सपोज अगर आप आगे से कहते हैं कि हाँ भाई मर जाओ, तो इट्स अ बैड थिंग। वो असल में जवाब नहीं चाह रहा, वो आपको इंस्टिगेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि भाई मुझे वो बात बता दो या मुझे जो चीज चाहिए वो दे दो ना। वो आपसे वो अपनी मौत के जो मतलब मुआयदा उसके ऊपर दस्तखत नहीं करवाना चाह रहा कि हाँ भाई आप मर जाएं। सो दिस इज हाउ रेटरिकल क्वेश्चंस वर्क्स एंड इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेटरिकल क्वेश्चन। सो लेट्स गो फर्दर। हियर इज बिकॉज द आंसर इज ऑब्वियस। क्यों रेटरिकल क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते? क्योंकि उनका जवाब बड़ा ऑब्वियस होता है। हु इज विद मी? लेट्स सपोज देयर इज अ पॉलिटिकल लीडर और वो एक जलसे में पूछ रहा है कि कौन कौन मेरे साथ है, तो द आंसर इज ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस आंसर है। इसी तरह अगर टीचर पूछता है कि आप चुप बैठेंगे, या टीचर आपको कहता है कि आप मुझे पानी पिलाएंगे, तो वो क्वेश्चन बड़ा ही ऑब्वियस है, उसका जो आंसर है वो बहुत ऑब्वियस है, आपको उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। यानी ऑब्वियस क्या है कि भाई चुप बैठो या मुझे पानी पिला दो। इसी तरह डू यू वांट एक्स्ट्रा होमवर्क? Let's suppose if teacher asks from you, do you want extra homework? So it's a rhetorical question. Nobody wants any extra homework. That's why the answer is very much obvious. Is there anybody who wants some extra homework? Yes, students. So nobody wants extra homework. That's why the answer is obvious. So such type of questions have the obvious answers. They don't demand any answer. There is no need to give answers to the rhetorical questions because the answer is very much obvious. Like here is another example. Like, do you want to stay in at lunch time? It means that क्या आप ब्रेक के वक्त भी, क्या आप लंच टाइम में भी क्लास में रहना चाहेंगे? तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा, सभी ब्रेक एंजॉय करना चाहेंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो रेटरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनका मकसद इंस्टिगेट करना, मोटिवेट करना है, ना कि जवाब हासिल करना। जो क्वेश्चंस हैं उनका जो जवाब है वो वेरी ऑब्वियस होता है, वो बड़ा ही आया होता है, वो क्लियर होता है कि हाँ भाई इसका यही जवाब है। So I hope you guys have understand why the rhetorical questions don't have to give an answer. Why do we use rhetorical question? Now the question is about usage. हमने ये पढ़ लिया कि rhetorical questions क्या है, हमने ये देख लिया कि उनका आंसर नहीं देते, फिर हमने ये देख लिया कि उनका आंसर क्यों नहीं देते, क्योंकि आंसर बड़ा ऑब्वियस होता है। अब हमने ये देखना है कि क्यों हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। Sometime a rhetorical question is really just a different way of getting someone to do something. तो बाद औक़ात rhetorical question किसी को कोई काम कहने का एक अलग तरीका होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को एक बड़े सब्टल वे में, एक बड़े लाइट मैनर के अंदर ये बता सकते हैं कि भाई ऐसा काम कर दो। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखी कि अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को कहता है कि क्या आप ये कर लोगे, इट्स ऑब्वियस थिंग, ही हैज टू डू सो बिकॉज इट्स हिज और हर जॉब। लेकिन अगर ये कहा जाता
कि आप ये काम कर लो, यू हैव टू डू दिस थिंग, तो इट्स अ डिफरेंट इफेक्ट, इट हैज अ डिफरेंट इफेक्ट, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग समथिंग, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग समथिंग। लेकिन जो दूसरा अंदाज था कि आप ये कर लेंगे, तो ये अंदाज क्या है, ये एक डिफरेंट अंदाज है, इससे इफेक्ट चेंज हो गया, इसमें इससे जो आपकी टोन थी, जो आपका अंदाज था, जो आपका लहजा था, वो नर्म हो गया। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आपकी मदर आपको कहती है डोंट यू वांट टू हेल्प योर मदर, क्या तुम अपनी मां की मदद नहीं करना चाहोगे? इट्स ऑब्वियस थिंग, यू वांट टू डू हेल्प एंड यू विल हेल्प। तो वो इनडायरेक्टली आपको क्या कह रही हैं कि भाई आओ और मेरी मदद करो। इसी तरह जब टीचर ने कहा था कि आप मुझे पानी पिलाएंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो ये कह रहा है कि भाई आओ और मुझे पानी पिला दो। इसी तरह अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो लोगों से ये पूछता है कि भाई कौन कौन मेरे साथ है, तो वो दरअसल सबकी कोई मतलब उनसे कोई वोटिंग नहीं कर रहा होता, वो कंसेंसस नहीं कर रहा होता, वो दरअसल क्या कर रहा होता है, उनको सिर्फ प्रोवोक कर रहा होता है, वो अपनी बात को मजीद अयां कर रहा होता है। तो रेटरिकल क्वेश्चंस का यूज किस लिए होता है? इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। बाद औकात एक बड़ा ही पोलाइट इफेक्ट क्रिएट होता है, किसके जरिए? रेटरिकल क्वेश्चंस के जरिए। एक बड़ी हार्श बात को भी आप क्या कर सकते हैं? रेटरिकल क्वेश्चंस के जरिए ठीक तरीके से कर सकते हैं। सो लेट्स लुक फर्दर. Here we have an example. So here is a question that kids grow up so quickly, don't they? So here is a way to make rhetorical questions. कि हमने सवाल क्या किया कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, क्या ऐसा नहीं है? अब डोंट दे ये क्या है? ये क्वेश्चन टैग है। रेटरिकल क्वेश्चंस बनाने का आसान तरीका क्या है कि जो क्वेश्चन टैग्स हैं आप उनको लगाएं और रेटरिकल क्वेश्चंस बना दें। You have to make a statement and then you just have to insert a question tag. There your rhetorical question will be. तो अब ये जो सवाल है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, इट्स अ स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो वो जो ऐसा नहीं है क्या है? क्वेश्चन टैग है, उसका मकसद जवाब मांगना नहीं है। इट्स ऑब्वियस थिंग, बच्चे बड़ी जल्दी बड़े होते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो दरअसल बात को आगे बढ़ा रहा है। तो क्वेश्चन टैग के जरिए आप क्या कर सकते हैं? एक रेटरिकल क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सम टाइम पीपल आस्क अ क्वेश्चन इन अ सार्कास्टिक वे टू प्रोवोक अ पॉइंट। जैसे हमने पहले देखा कि रेटरिकल क्वेश्चन का यूज क्या है? किस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, कोई पोलाइट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, किसी बात को एक अलग अंदाज से कहने के लिए यूज होता है। अब हम देखेंगे कि रेटरिकल क्वेश्चंस किस लिए यूज होते हैं? सार्कास्टिक वे में, यानी आप तंजन कहते हैं, आप किसी को एक हम कह सकते हैं कि मॉक्ड मैनर के अंदर बात करते हैं, सैटायरिकल मैनर के अंदर बात करते हैं कि भाई इस तरह से मतलब किसी को प्रोवोक करने के लिए कि कोई बंदा वो काम करे। लेट्स सपोज डू आई लुक लाइक आई एम मेड ऑफ मनी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों से बना हूं? इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज अगर कोई ये कहता है क्या तुम्हें लगता है कि पैसे दरख्तों पे लगते हैं, या मैं पैसों से बना हुआ हूं, या क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं? दे आर एक्चुअली प्रोवोकिंग समवन, दे आर एक्चुअली गिविंग सम स्टेटमेंट टू समवन। They are very loud that you don't have to ask for money to me. कि तुम्हें मुझसे पैसे नहीं मांगने। क्यों? मैं पैसों का नहीं बना, या पत्तों से तोड़ के पैसे नहीं आ सकते, दरख्तों से तोड़ के पैसे नहीं आ सकते। इसी तरह अगर कोई ये कहता है कि भाई क्या मैं पागल हूं, एक सार्केस्टिक मैनर में, एक हम कह सकते हैं कि एक हार्श मैनर में, तो इट्स अ वे ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट आई अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड आई एम नॉट डूइंग अ रबिश थिंग। So this is how these rhetorical questions are also used to provoke someone to make a clear and loud statement, to give someone a particular meaning that you don't have to ask for me about the money or something like that. Here is another example, like no, so here is the answer is obvious that I don't have much money, so don't ask for any. So this is how rhetorical questions are used to make a particular point, to prove a particular point, to develop a particular point, to give a particular statement to someone about something in the interrogative way. So I hope the second use of rhetorical question is very much clear. So now we have to learn how to tell if a question is rhetorical. So the question is that how can you identify which question is a rhetorical question and which question is a general question, which question has to answer, which question don't has to answer. So students, most of the time the sense
actually clarifies is a question is a rhetoric or not. So the rhetorical questions carry a particular sense, a particular thought process. You can assume by looking at the rhetorical question that this question is a rhetoric or a general question. So let's find out how we can identify the rhetorical question, and then we will try to identify some of the rhetorical question to know either we are able to identify the rhetorical questions or not. So think, the main way to tell yourself is a question is a rhetoric or not, what you have to do, you just have to think about the question, you just have to think about the situation, because most of the time the rhetorical questions comes out of situations. You have to look at the situation. Let's suppose if there is a setting of a classroom, if there is a setting of home, and then your mother asks, and your mother is very much busy, and then your mother asks, क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहोगे? तो इस सवाल और इस सिचुएशन और इस सेटिंग को देख के हमें समझ आ जानी चाहिए कि दरअसल ये सवाल जवाब के लिए नहीं पूछा गया, बल्कि इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ आस्किंग कि भाई आओ और मेरी मदद करो। तो आप सिचुएशन को देख के, सेटिंग को देख के, करैक्टर को देख के कि सवाल पूछ कौन रहा है और किन हालात में पूछ रहा है, उससे आप क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आया कि ये सवाल रेटरिकल है या नहीं है। लेट्स सपोज इफ समवन आस्क दैट कि भाई क्या आसमान नीला है, तो आप सोचेंगे कि भाई रेटरिकल क्वेश्चन तो वो होता है कि जिसके आंसर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्वियस होते हैं। तो जिनके आंसर्स ऑब्वियस हों वो रेटरिकल क्वेश्चंस थे। और ये जो सवाल है कि क्या आसमान नीला है, तो भाई नीला है ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये तो सबको पता है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन क्या है, रेटरिकल है। तो हम सिचुएशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं, रेटरिकल क्वेश्चंस के फीचर्स को यूज करके भी पता कर सकते हैं कि आया क्या सवाल रेटरिकल है या नहीं। तो आए जरा देखते हैं, डज द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन रियली वांट टू नो सम न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी। तो आप इस अंदाज से भी देख सकते हैं, अगर जो पूछने वाला है, जो आस्कर है, जो क्वेश्चनर है, जो स्पीकर है, अगर तो वो कोई इन्फो चाह रहा है आपसे, कोई नई चीज आपसे पूछना चाह रहा है, वो कुछ न्यू चाहता है आपसे, तो फिर वो क्वेश्चन रेटरिकल क्वेश्चन नहीं है। और अगर वो किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन, कोई मालूमात, कोई एक्स्ट्रा बात आपसे नहीं पूछना चाहता या आपसे नहीं डिमांड कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो सवाल क्या है, रेटरिकल क्वेश्चन है। तो जिसमें कोई बंदा जवाब नहीं चाह रहा होता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाह रहा होता, वो सवाल क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है। और अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका आंसर ऑब्वियस है या जिसका जवाब देना बदतमीजी शुमार होगा, या ऐसा सवाल जिसमें सिचुएशन ये वाजे कर रही है कि भाई ये कोई डिमांड कर रहा है, ये कुछ कह रहा है, तो वो सवाल क्या है, वो रेटरिकल है। और जिन सवालों में ये सब कुछ ना हो वो क्या है, जनरल क्वेश्चंस हैं, जिसमें अगला क्या कर रहा है, वो कोई जवाब चाह रहा है आपसे, वो कुछ पूछना चाह रहा है आपसे, वो कुछ डिमांड कर रहा है, डिमांडिंग सम इंफॉर्मेशन। So those questions are considered as the simple questions, and the questions which are not asked with the aim of wanting an answer are considered as the rhetorical questions. So let's find out which question is a rhetorical question and which is not. So student, here you have to read these questions and then you have to identify which question is rhetorical question and which question is not. So you all have to read this question once. तो आप सभी इन सवालों को एक बार पढ़ लें, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और फिर हम रैंडमली पूछते हैं हर एक से कि ये फलां सवाल कौन सा है और दूसरा कौन सा है। Just 1 minute. There is just 1 minute. You have to read all these questions and then we will ask which one, then we will identify which one is a rhetorical question and which one is not. If someone got the answer, he can raise the hand. अगर किसी को जवाब मिल जाए या पता चल जाए किसी एक का भी, तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। Yes, Kingway School. The first question is that spot the difference which are rhetorical. So this is the activity question which we have to do. And then the first question, do you want sugar in your coffee? Yes, the Kingway School. Sir, practical question है.
Is it a rhetorical question? Why? Yes, the Kingway School. What's the reason? Why it's a rhetorical question? So इसका आंसर yes ही है. No. G, the JTN school. You can unmute yourself. Sir, it's not a rhetorical question. Why it's not a rhetorical question? क्योंकि उसमें वो मस्बत अंदाज में पूछ रहे हैं. उसमें वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ऐसा ही है. Yes. वो उसमें आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई कॉफी में चीनी पीते होगे नहीं पीते, यानी बगैर चीनी के कॉफी लोगे या चीनी के साथ लोगे. तो ही इज डिमांडिंग सम इंफॉर्मेशन. तो जिसमें इंफॉर्मेशन पूछी जा रही हो वो रेटरिकल क्वेश्चन नहीं होता. नहीं होते. नॉट अ रेट्रिक. तो हम क्या लिख देंगे? नॉट और आर लिख देंगे, जो वाजे करेगा कि ये रेटरिकल क्वेश्चन नहीं है. बहुत अच्छे बेटा जी. अल सईद एजुकेशन सिस्टम. देयर इज द सेकंड क्वेश्चन. आर दे एवर गोइंग टू गेट हियर? यस स्टूडेंट्स. Al Said education system. Is it a rhetorical question? Yes, sir. Why? What's the reason? G, the Renaissance school. Is it a rhetorical question or not? The Renaissance school. No, sir. Why? Yes, the Renaissance school. Why it's not a rhetorical question? Yes, the central. Yes, this. Ji. Yes, the Central Fatma school. Is it a rhetorical question or not? No, sir. It is a rhetorical question. G, Central Fatma. It's a rhetorical. Sir, it's a rhetorical. क्यों? What's the reason? हाँ जी, वो तंज कर रहा है. क्या वो कभी यहां पहुंचेंगे? इस सवाल का मतलब क्या है? क्या वो कभी यहां पहुंचेंगे या वो कभी यहां पहुंच रहे हैं? इसका मतलब है कि कोई है जो लेट हो चुका है, जिसने आना था और वो अभी तक नहीं पहुंचा, और उस सेंस में कहा जा रहा है आर दे एवर गोइंग टू गेट हियर? क्या वो कभी यहां आ रहे हैं? इज दैट क्लियर? सो बिकॉज इट्स अ सार्केस्टिक क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ rhetorical question. He is actually doing a satire. वो दरअसल तंज कर रहा है इस सवाल के जरिए, एक स्टेटमेंट दे रहा है. ऐसा ही है. That's why it's a rhetorical question. He is not demanding an answer. Yes, the third question. What's the price of this t-shirt? This one. It is not a rhetorical question. It's not a rhetorical question because he is demanding some information. He is demanding some exact answer. That's why it's not a rhetorical question. Now the fourth question, and the answer has to be given by the Little Star schools. Yes, Little Stars. Article. It is the rhetorical question because 2-year-old baby is not able to said something. Yes. Are you 2 years old or something? इस सवाल का मतलब क्या है कि भाई क्या आप बच्चे हो या कुछ ऐसा है? यानी आर यू अ किड, यानी किसी ने कोई ऐसी चीज की है जो कि शायद उसके शयाने शान नहीं है या उसके एज अप्रोप्रिएट नहीं है. तो क्या किया, उसने पूछा कि भाई क्या तुम 2 साल के बच्चे हो या तुम मतलब कुछ छोटे बच्चे हो? तो इसलिए ये क्या है, ये एक रेटरिकल क्वेश्चन है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सपोज टू आस्क टू मेक अ स्टेटमेंट. किसी को कुछ कहने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, उसको जज्बात को उभारने के लिए, उसके ख्यालात को उभारने के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए पूछा गया. तो आई होप यू गाइज हैव एन आइडिया अबाउट रेटरिकल क्वेश्चंस एंड नॉन रेटरिकल क्वेश्चंस. क्या अब किसी को कोई कंफ्यूजन है
कि रेटरिकल क्वेश्चन क्या होता है और क्या नहीं होता. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क. यस स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट्स गो फर्दर. हैव यू एवर वांटेड टू बी टॉट बाय द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड? सो हियर इज एन अदर एग्जांपल. अगर आपसे कोई ये कहे कि क्या आप दुनिया के सबसे बेहतरीन उस्ताद से पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप इसका जवाब देंगे? जी, इसका जवाब ऑब्वियस है. कौन है जो नहीं पढ़ना चाहता दुनिया के सबसे अच्छे उस्ताद से? हर कोई दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ना चाहता है. सो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन answer is very much obvious. That's why it's a rhetorical question. And here is another example as well. So let's skip that example. इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं. डू आई लुक लाइक आई वॉज बोर्न यस्टरडे? क्या ऐसा लगता है कि जैसे मैं कल ही पैदा हुआ था? यानी कि आपको लगता है कि मैं बच्चा हूं. इसका मतलब है समवन मेकिंग अ पॉइंट, समवन मेकिंग अ स्टेटमेंट कि भाई वो समझदार है, वो चीजों को समझता है, वो बातों को का उसको पता है. इज मनी ग्रोइंग ऑन ट्रीज? और हैव यू एवर सीन मी अराइव लेट टू एनीथिंग? यानी क्या तुमने मुझे कभी लेट होते देखा है? या इस तरह के क्वेश्चंस जिसका मकसद दरअसल किसी को कोई मीनिंग कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है, जवाब मांगना नहीं है, क्या कहलाते हैं? रेटरिकल क्वेश्चन. इसी तरह स्टूडेंट्स पोइट्री के अंदर भी जो रेटरिकल क्वेश्चंस हैं वो बड़ा ज्यादा यूज होते हैं. किस लिए? एक पर्टिकुलर इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, पोइट्री की मेलोडीनेस को क्रिएट करने के लिए. तो यहाँ पे शेक्सपियर की कुछ लाइंस हैं. विलियम शेक्सपियर, जिसको इंग्लिश पोइट्री का एक बहुत बड़ा शायर समझा जाता है, वो क्या कहता है? इफ यू prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? यानी अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर तुम हमें मारोगे, तुम हम पे खंजर से वार करोगे, तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा? और अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम मर नहीं जाएंगे? और अगर तुम हमारे साथ कुछ बुरा करोगे तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस का क्या मकसद है? एक पर्टिकुलर इफेक्ट पैदा करना. किसमें? शायरी में. तो पोइट्स अक्सर ऐसा करते हैं. मतलब रोमांटिक पोइट्स भी और भी काफी सारे पोइट्स, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, बुटलर यीट्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं? रेटरिकल क्वेश्चंस को इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या किया जा सके? ताकि पोइट्री में भी एक इफेक्ट पैदा किया जा सके. उर्दू पोइट्री के अंदर भी रेटरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे जॉन एलिया का एक रेटरिकल क्वेश्चन बड़ा मशहूर है कि गाहे गाहे अब बस यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या. ही इज नॉट एक्चुअली डिमांडिंग सम आंसर, ही इज एक्चुअली मेकिंग अ स्टेटमेंट. सो दिस इज हाउ द रेटरिकल क्वेश्चंस आर यूज्ड इन द पोइट्री. नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ रेटरिकल क्वेश्चन. सो there we have the three types of rhetorical questions which are very much close. So first type is hypophora. So what are the hypophora rhetorical questions? Questions that immediately and answer itself. ऐसे सवाल जिनका जवाब बहुत ज्यादा क्या है? ऑब्वियस है. जिनका जवाब खुद ब खुद जो है वो क्या हो, वो बाहर निकल के आ जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइपोफोरा क्वेश्चंस बोलते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट डू वी स्टैंड फॉर? लेट्स सपोज कायदे आजम स्पीच कर रहे हैं और पाकिस्तान मूवमेंट का टाइम हो, 1940s का टाइम हो, और वो क्या कहें? वो कायदे आजम पूछें सबसे कि व्हाट डू वी स्टैंड फॉर? किस लिए हम खड़े हैं? तो इट्स अ वेरी मच ऑब्वियस थिंग दैट दे ऑल आर स्टैंडिंग फॉर द फ्रीडम, फॉर द जस्टिस एंड फॉर द इक्वालिटी फॉर ऑल. So those type of questions which comes up with the immediate answer by themselves is considered as a particular type of rhetorical question, the hypophora rhetorical question. And the second type is epiplexics. So epiplexics rhetorical questions, what they are? Questions used to challenge the audience. So in which you instigate the audience, you challenge the audience. Don't you think this has to be done? Don't you think this is right? Don't you think this is wrong? So such type of questions are considered as epiplexics rhetorical questions, like, do you call this justice to let the guilty walk free while the innocent suffer? यानी अगर आप किसी से ये पूछें, क्या तुम्हें लगता है कि ये इंसाफ है कि जो जालिम है उसको खुलेआम छोड़ दिया जाए और जो मजलूम है, जो मासूम है, उसको सफर करने दिया जाए? तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आप क्या करते हैं? आप किसी के जज्बात को उभारते हैं, आप किसी के ख्यालात को उभारते हैं, आप किसी को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं. ये क्वेश्चंस क्या होते हैं?
एपिपलिक्सिस रेटरिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह एरोटोसिस क्वेश्चंस हैं। ये कौन से रेटरिकल क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस यूज्ड टू इवोक अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, जिसका मकसद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पैदा करना हो। जैसे हाउ कैन वी एक्सेप्ट टू अचीव पीस बाय कंटिन्यूइंग टू प्रिपेयर फॉर वॉर, यानी अगर आपका कोई दुश्मन है, लेट्स सपोज आप निगोशिएट कर रहे हैं और आप क्या कहते हैं कि भाई हम कैसे अमन की बात कर सकते हैं जंग की तैयारी करते हुए, तो इसका मतलब है आप उसको किसी एक्शन से रोकना चाह रहे हैं। या जिस तरह से हमने वो मदर वाला क्वेश्चन लिया कि उसमें क्या था कि क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आप किसी को किसी एक्शन के ऊपर इंस्टिगेट करो, किसी एक्शन को करने पे मजबूर करो, वो कौन से रेटरिकल क्वेश्चंस कहलाते हैं? Eroticist rhetorical questions कहलाते हैं। So I hope you guys have an understanding about the types of rhetorical question. If there is any question you can ask through raise your hand. So I think so it's very much clear. Now the easiest way to write a rhetorical question is by forming a question right after the statement to mean the opposite of what you said. These are called the rhetorical tag questions, like the dinner was good, wasn't it? So these are the questions tag. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम क्वेश्चन टैग्स के जरिए बड़ी आसानी से रेटरिकल क्वेश्चंस बना सकते हैं, और सिर्फ एक क्वेश्चन टैग लगाने से अंदाज बदल जाएगा, जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, और जो एक सिंपल स्टेटमेंट थी वो रेटरिकल क्वेश्चन बन जाएगी। जैसे खाना, क्या रात का खाना अच्छा था, क्या नहीं था, तो क्या नहीं था ये क्या कर रहा है, ये इसको रेटरिकल क्वेश्चन बना रहा है। इसी तरह दी न्यू गवर्नमेंट इज डूइंग वेल, इजंट इट, तो इजंट इट क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन टैग बना रहा है। और रेटरिकल क्वेश्चन बनाने का एक इंतहाई आसान तरीका ये है कि आप क्वेश्चन टैग लगाएं और रेटरिकल क्वेश्चंस बना लें। नाउ देयर इज सम एक्टिविटी व्हिच यू हैव टू डन बाय योरसेल्फ. Your teacher will assist you in while doing this activity, and there we have some simulation links. अगर आपको रेटरिकल क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे तो आप इनको देख सकते हैं और इनको देख के अपने कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। Here we have a worksheet जो के साथ शेयर हो जाएगी। इसमें भी आपने क्या करना है, रेटरिकल क्वेश्चंस और नॉन रेटरिकल क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपने देयर आर स्टेटमेंट्स, देयर आर इश्यूज, देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू हैव टू से, बट यू हैव टू से इन अ पोलाइट मैनर विद द हेल्प ऑफ रेटरिकल क्वेश्चंस, बिकॉज रेटरिकल क्वेश्चंस कैन चेंज द इफेक्ट of what you are going to say. So what you have to do, you just have to write the rhetorical questions out of these statement, out of these issues. So here is the worksheet. So I hope you guys enjoy the lecture. I hope you guys have an understanding. Now you have an understanding of the rhetorical question. If there is any question, if there is any confusion, you can ask. Yes, students, is there any question? Okay, that's fine. So thank you very much. Allah Hafiz.